ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہریان کو نئے سال کا تحفہ دیتے ہوئے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے کیا میٹرو لائن پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان۔ میونسپل کمشنر اور ڈپٹی میونسپل کمشنر نے پراپرٹی ٹیکس و پانی پٹی وصولی میں شہریان کی جانب سے مل رہے تعاون پر بھی ادا کیا شکریہ۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل اورنگ آباد کو ناکارہ الیکٹرک وائرنگ سے جلد ملے گی نجات۔ DPDC کی میٹنگ میں 3 کروڑ روپیوں کے فنڈ کو مل سکتی ہے منظوری، ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے جتائی امید۔ تاریخی شہر کا ادبی جمود ہو گیا ختم، انجمن اہل قلم اور دیگر تنظیموں کی کاوشوں سے اچھی غزلیں، نظمیں اور افسانے لکھنے والی خواتین کی ٹیم ہو گئی تیار۔ قومی سطح پر شہر کا نام روشن ہونے کا امکان، نوکھنڈا کالج میں منعقدہ ادبی پروگرام سے دانشوروں کا خطاب۔ اور ریت کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں پر دولت آباد پولیس نے کسا شکنجا، آسے گاؤں سے ریت چرانے والے 3 افراد گرفتار۔ JCB اور ہائیوا ٹرک سمیت 45 لاکھ روپے مالیت کا سامان ضبط، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ نئے سال کا شہریان کو تحفہ دیتے ہوئے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے سال 2022 میں شہر میں میٹرو لائن پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا، جس کا DPR جلد ہی تیار کیا جائے گا۔ اورنگ آباد کو ایک نیا گفٹ دینے کے لیے میٹرو پرکلپ، میٹرو لائن کا پرکلپ بھی شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس کا DPR کا کام 2022 میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس سال شہریان کے تعاون کے سبب میونسپل انتظامیہ نے پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی وصولی کے پرانے سبھی ریکارڈز توڑ دیے ہیں اور 30 دسمبر تک 98 کروڑ روپے وصول کر لیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی امید جتائی کہ 31 دسمبر کے دن مزید 2 کروڑ روپے وصول کر لیے جائیں گے۔ اس طرح 100 کروڑ روپیوں کی ریکارڈ ساز وصولی کی گئی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے، ایڈیشنل میونسپل کمشنر BB نیمانے، وارڈ آفیسر سویتا سونو نے SC جرارے اور دیگر اسٹاف ممبران کی کارکردگی کی کھل کر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں، جس کے سبب میونسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پراپرٹی ٹیکس اور واٹر ٹیکس کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے سبھی آن لائن پیمنٹس کے راستے شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریان گھر بیٹھے ہی اپنے ٹیکسز ادا کر پائیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہریان کو اگر وقت پر ڈیمانڈ بل مل جائے تو وہ ٹیکسز ادا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے مطابق آہستہ آہستہ ہمارا شہر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور سال 2022 میں بہت سارے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے جو گزشتہ دنوں شروع کیے گئے تھے۔ میں نے رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ پوسٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سریمتی اپرنا تھیٹے میڈم کو ٹیکس اور واٹر چارجز کی ریکوری کی رسپانسبلٹی دی۔ شی ہیز ڈن اے مارولس جاب۔ سیم ٹائم ایڈیشنل میونسپل کمشنر نیمانے صاحب کو بھی رسپانسبلٹی دی گئی تھی۔ انہوں نے بھی پرسنل انٹرسٹ لیا اور اپنی پوری انرجی لگا دی اس ٹیکس ریکوری کو کرنے کے لیے۔ سیم ٹائم پر ہمارے وارڈ آفیسر پرٹیکولرلی سویتا سونو نے، وارڈ آفیسر جرارے، وارڈ آفیسر سنتوش ٹینگلے، ڈپٹی کمشنر، ان لوگوں نے بھی بہت شاندار کام کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو انیہ وارڈ آفیسر مسٹر وکرم دراڑے، مسٹر ڈیاتے، آٹھولے، ان لوگوں نے بھی اچھا کام کیا۔ مین پوائنٹ واز کہ لاسٹ 2 years سے we were trying to improve the situation of recovery, tax recovery in the city. Last year it was COVID, so we got very less success. But this year, since 1st April 2021, we were able to distribute all bills to citizens in a transparent manner.
एंड मेरा अपना ये मानना है कि जब नागरिकों को उनको क्या पानी पट्टी देना है और क्या प्रॉपर्टी टैक्स देना है, अगर नागरिकों को बहुत पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया जाए तो उसकी वजह से नागरिक अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं एंड वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर चार्जेस देना चाहते हैं। सो अल्टीमेटली औरंगाबाद के नागरिकों ने औरंगाबाद महानगर पालिका को सपोर्ट किया और जो उनके प्रॉपर्टी टैक्स और जो वाटर चार्जेस हैं वो टाइम पर पे किए। 75% की रिबेट भी हमने इसीलिए दी एंड नागरिकों ने उसका भी लाभ उठाया है। एंड आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि ड्यू टू GIS मैपिंग सारे प्रॉपर्टी का सर्वे होने के बाद में एंड सेम टाइम वाटर चार्जेस वाटर कनेक्शन का सर्वे होने के बाद में सभी नागरिकों को पारदर्शी रूप से उनका क्या पानी पट्टी है और उनका क्या वाटर चार्जेस एंड सेम टाइम उनका क्या प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी उनको पता चलेगा। एंड उसके बाद में औरंगाबाद के नागरिक बढ़ चढ़ के पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए सामने आएंगे इन 2022 एंड इसकी वजह से औरंगाबाद महानगर पालिका की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और वो बढ़ी हुई आय औरंगाबाद शहर के विकास के लिए औरंगाबाद के नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए इन्वेस्ट की जाएगी, खर्च की जाएगी। इसलिए ये औरंगाबाद के नागरिकों के हित में है कि अगर वो पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो उनको और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की नागरिक सुविधाएं दी जा सकेंगी। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में आइंदा 28 फरवरी तक 75% छूट दी जा रही है। इसी तरह गैर कानूनी नल कनेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए भी अभय योजना शुरू की जा रही है। लिहाजा शहरियान इन दोनों स्कीमात का फ़ायदा उठाएं। ये अपील डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे ने शहरियान से की है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदायगी के मामले में मिल रहे शहरियान से ताउन पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने तमाम शहरियान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि शहरियान के ताउन के सबब पहली मर्तबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया दिसंबर ख़त्म होने तक 100 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूल कर पाया है। उन्होंने मजीद बताया कि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 75% की छूट दी जा रही है, इसी तरह गैर कानूनी नल कनेक्शन लेने वालों को अपने कनेक्शन रेगुलराइज करवाने अभय योजना शुरू की जा रही है। लिहाजा शहरियान इन दोनों स्कीमात का फ़ायदा उठाएं। नमस्कार, मी महानगरपालिकेची उपायुक्त अपर्णा थेटे। आज सर्व नागरिकांचे मी अत्यंत आभार मानते आणि अभिनंदन करते की आज पहिल्यांदाच महानगरपालिकेने डिसेंबर 31 पर्यंतची आपली रिकव्हरी जी आहे ती 100 कोटीचा टप्पा पार करत आहे आणि या सर्वांमध्ये आपल्या सर्वांचे योगदान खूप महत्त्वपूर्ण राहिले आहे। महानगरपालिकेने जे वेळोवेळी योजना जाहीर केल्या त्यामध्ये आपण उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि महानगरपालिकेच्या उत्पन्न वाढीमध्ये आपण त्याच्यामध्ये हातभार लावलेला आहे। आपल्या सर्वांना मी आता पुनश्च एक विनंती करत आहे की 28 फेब्रुवारी पर्यंत आपली 75% सूट माफीची योजना चालू आहे, पण 28 फेब्रुवारी पर्यंत वाट न पाहता नागरिकांनी लवकरात लवकर भरणा करावा, म्हणजे मग आम्हाला अजून पुढे जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी आम्हाला त्या वेळेचा उपयोग करता येईल। आणि सोबतच उद्यापासून महानगरपालिकेने पाणी पट्टीचे अभय योजना चालू केलेली आहे। ज्यांचे कोणाचेही अवैध नळ कनेक्शन असेल त्यांनी आता वैध करून घ्यावे, यामुळे आपलाच फायदा होणार आहे आणि महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर आपला नळाच्या बाबतची माहिती पूर्ण येईलच। तसेच आपल्याला अजून एक निवेदन करत आहे की महानगरपालिका आता सर्वे करत आहे आणि ह्या सर्वेद्वारे आम्हाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों में अज़-सर-ए-नौ इलेक्ट्रिक वायरिंग करने की गर्ज से 19 करोड़ रुपयों का तखमीना तैयार किया गया है और आइंदा 3 जनवरी को मुनक़िदा DPDC की मीटिंग में पहले मरहले में इन कामों के लिए 3 करोड़ रुपयों के फंड को मंजूर किया जा सकता है। ये उम्मीद ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने जताई है। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के भंडारा, नासिक और अहमदनगर इन अजला में सरकारी दवाखानों में आग लगने के वाक़यात रूनुमा होने के बाद सभी सरकारी दवाखानों का फास्ट ऑडिट करने का हुक्म रियासती हुकूमत ने दिया था, जिसके मुताबिक घाटी दवाखाने का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट और
इलेक्ट्रिकल ऑडिट किया गया था, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ था कि घाटी दवाखाने की इलेक्ट्रिकल वायरिंग मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है और असर नौ उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। इस नाक़िस वायरिंग के ज़रिए ओटी, ओपीडी, एमआरआई और दीगर शोबों को बिजली फराहम की जा रही है और केबल पुराने हो जाने के सबब बार बार यहाँ शॉर्ट सर्किट के वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। लिहाजा यहाँ असर नौ केबल वायरिंग के लिए एस्टीमेट बनाने देवगिरी इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई थी। सर्जिकल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जबकि OPD, मेडिकल कॉलेज, मेडिसिन डिपार्टमेंट की इमारतों में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 19 करोड़ रुपये दरकार हैं। लिहाजा पहले मरहले में सर्जिकल बिल्डिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 3 जनवरी को मुनक़िदा DPDC की मीटिंग में 3 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया जा सकता है। इस तरह की उम्मीद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जताई है। साल 2022 में औरंगाबाद ज़िले को कोरोना फ्री करना ही हमारा नज़्मुल ऐन रहेगा। इस तरह का अज़्म ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने ने किया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, जिसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया का कारोबार रुक सा गया था, लेकिन साल 2021 में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात के सबब किसी हद तक इस मर्ज़ पर काबू पा लिया गया, मगर अब भी उसका ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है और अब इस वबा का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सारी दुनिया पर कहर ढाने जा रहा है। लिहाजा साल 2022 में इस वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ही उनका और उनके महत्तहतीन का नज़्मुल ऐन रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को पांव पसारने का मौका न दिया जा सके, इसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा और अगर आवाम का ताउन मिले तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इस मुसीबत से भी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। नीलेश गटने ने मज़ीद बताया कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए काम करने के साथ साथ देही आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाना, जल जीवन मिशन, आवास योजना, बिजली बिल व मातोश्री, पानंद रास्ते, तालीम, हिफ़्ज़ान सेहत और सफाई और देही इलाक़ों में सफाई इंतज़ामात दुरुस्त रखने के लिए वो और इन कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि कोरोना के ख़ात्मे के लिए हर शहरी वैक्सीन लगवा ले। गुंठेवारी अमेंडमेंट एक्ट के तहत शहर में आबाद गैर क़ानूनी बस्तियों और गैर क़ानूनी तामीरात को रेगुलराइज़ करवाने की गर्ज से दरख्वास्त दही की तारीख़ में एक बार फिर 1 माह की तोसी की गई है और अब 30 जनवरी तक शहरियान दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मालिकान के लिए ये आखिरी मौका रहेगा। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल हदूद में ज़ायद 50,000 गैर क़ानूनी तामीरात को रेगुलराइज़ करने का टारगेट इंतज़ामिया ने मुकर्रर किया है, मगर अब तक सिर्फ 4,214 शहरियान की जानिब से ही दरख्वास्तें मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को मौसूल हुई हैं और कई फ़ाइलें आर्किटेक्ट्स के पास पेंडिंग पड़ी हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने सितंबर महीने से गुंठेवारी की फ़ाइलें कबूल करना शुरू की थीं और 30 सितंबर दरख्वास्त दही की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। उसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान के रिस्पांस को देखते हुए उसमें मज़ीद 1 माह का इजाफा किया था और 1 नवंबर से गुंठेवारी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने का इंतबाह दिया था, मगर राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की मदाखलत के बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मज़ीद 2 मरतबा दरख्वास्त दही की मियाद में 1 माह का इजाफा किया, जो आज ख़त्म होने जा रहा था, मगर फिर से शहरियान के इसरार पर दरख्वास्त दही की तारीख़ में 1 माह का इजाफा किया गया है। अब शहरियान 30 जनवरी तक अपनी फ़ाइल्स दाखिल करवा सकते हैं, मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मालिकान के लिए अपनी गैर क़ानूनी तामीरात को रेगुलराइज़ करवाने का ये आखिरी मौका है। उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए आगे एक्सटेंशन मिलने का कोई इम्कान नहीं है। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक गुंठेवारी इलाक़ों में 373 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब तक रेगुलराइज नहीं की गई हैं, जबकि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को अब तक 4,214 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से 2,037 फ़ाइलें मंजूर कर ली गई हैं और 78 फ़ाइल रिजेक्ट कर दी गई हैं, जिनसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को 39 करोड़ 2 लाख
58,223 रुपयों की आमदनी हुई है। अंजुमन अहले कलम की जानिब से डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में आज एक अदबी नशिस्त मुनक़िद की गई, जिसमें BA फाइनल ईयर और MA की तालिबात ने अपनी तख्लीक़ात पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। मारूफ अदीब अहमद इकबाल की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फरहत नुसरत, तृप्ति डिगीकर और फिरदौस फातिमा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। प्रोग्राम के आगाज़ पर कॉलेज की तालिबा खान समीना ने कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद सैयदा ज़ेबा नाज, सबा मुनीर अहमद और सबा तहसीन के अलावा दीगर तालिबात ने अपनी तख्लीक़ करदा नज़में और अफसाने सुनाए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। मारूफ अदीब अहमद इकबाल ने कहा कि आज तालिबात की तख्लीक़ात को सुनकर अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कुछ वक्त के लिए हमारे तारीख़ी शहर पर जो अदबी जमूद छाया था वो न सिर्फ ख़त्म हो गया है, बल्कि अच्छी गज़लें और नज़में लिखने वाली ख़वातीन की एक पूरी टीम तैयार हो रही है, जो कौमी सतह पर हमारे शहर का नाम रोशन करेगी। मौलाना आज़ाद कॉलेज नौखंडी में आने का मौका मिला। अंजुमन अहले कलम का एक छोटा सा इज्तिमा था, तमाम बच्चियाँ यहाँ मौजूद थीं, फिरदौस फातिमा भी थी, फारूक साहब की सरपरस्ती में ये काम हो रहा था। मुझे आकर बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि लड़कियाँ उन्वान देकर नज़में पढ़ रही थी। बहुत अच्छी नज़र पढ़ी उन्होंने, और दरअसल लड़कियों को उन्वान मुंतखब करके ही नज़में कहना चाहिए। गज़लिया शायरी तो मुद्दतों से हो रही है, लेकिन ख़वातीन को जो शायरी सूट करती है वो यही है कि वो मनाज़िर फितरत पर, बरसात पर, किसी भी मौजू पर उन्वान के तहत नज़में कहें। इस तरह उनकी सलाहियतें उभरेंगी और आगे चलकर हमारा जो औरंगाबाद अदबी तौर पर थोड़ा पिछड़ गया था वो अब आगे आएगा। हमारे पास सिवाय चंद नामों के ख़वातीन के और भी कोई नाम नहीं मिलता था। अब उम्मीद पैदा हुई है कि ये बच्चियां आगे चलकर यकीनन अदब में एक मकाम बनाएंगी, और औरंगाबाद का नाम शफीक फातिमा शेरा के 2 ख़वातीन हैं, उनके बाद में एक लंबा तवील फासला है जिसमें कोई खातून, कोई निसाई आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे देखने का मौका मिला। बहुत 2-3 बहुत प्यारी प्यारी नज़में जो उन्वान के तहत लिखी गई थी, वो प्यारी बहनों और औरंगाबाद का जो देखने को मिला, सुनने को मिला, वो बहुत प्यारा है। तो ऐसी मौज़ूआती चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट करेंगी, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासतौर पर फिरदौस फातिमा को और हमारे जनाब मखदूम फारूकी साहब को कि वो इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह करे ये सिलसिला दराज होता चला जाए। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने कहा कि इश्क और माशरे के अलावा भी मौज़ूआती नज़में कही जा सकती हैं, जो इन तालिबात ने साबित कर दिखाया है। प्रोग्राम की रूह रवां फिरदौस फातिमा ने भी अपने तासुरात बयान किए। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन नौखंडा और अंजुमन अहले कलम इसके मुश्तरका कोशिश से हम यहाँ पर पढ़ने वाली BA की और MA उर्दू की और जो बच्चियाँ रिसर्च कर रही हैं उनके अंदर ये सलाहियतों को उभारने का काम कर रही हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ बहुत अच्छा लिख रही हैं, और दोनों भी नज़म में भी और नसर में भी। तो प्रोज़ और पोएट्री में ये बच्चियाँ बहुत अच्छा लिख रही हैं। अभी मैंने जो बच्चियों को सुना है वो उन्वान के तहत, जैसा इकबाल साहब ने बताया कि उन्वान के साथ, और शायरी का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ इश्क के बारे में कही जाए, बल्कि बेशुमार उन्वानात है जिसमें ख़वातीन के मसाइल को उठाया जा सकता है, और हिंदुस्तान में गुर्बत के मसाइल को उठाया जाता है, मौसम के मसाइल को, और जो है तो सहूलतों के ना होने के मसाइल को। ये सारे मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम का है, लड़कियों की जो है तो नशो नुमा है,
ان کی جو ہے تو سماج میں جو ان کو ایکول اسٹیٹس کا مقام ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، تو اس تعلق سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ سارے مضامین پر جو ہے شاعری کی جا سکتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انجمن اہل قلم کی فردوس فاطمہ میڈم کی کافی کوششیں ہیں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اردو اور یہاں پر تمام جو اساتذہ ہیں، ہماری وائس پرنسپل ودیا میڈم، ہمارے ایچ او ڈی فرت نسرین میڈم اور سابقہ ایچ او ڈی جو ہے شرف النہار میڈم، انہوں نے کافی اچھی کوششیں کی ہے اور اردو کی شاعری اور نثر کو بڑھاوا دیا ہے. اور ہم نے یہاں پر یو پی ایس سی کا اردو آپشنل کا بھی جو سینٹر چل رہا ہے اس سے بھی بچیاں کافی مستفید ہو رہی ہیں. میں پھر سے انجمن اہل قلم کا اور تمام اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں، باہر سے جو ہمارے پاس پی ایچ ڈی بھی باہر سے بہت بچیاں کر رہی ہیں، اور باہر کی بچیاں بھی یہاں پر آ کر جو ہے تو مستفید ہو سکتی ہیں. ہماری لائبریری بہت رچ ہے اور اردو کے ذریعے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. نوکھنڈا کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ایک ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ نشست خاص طور پر خواتین کے لیے تھی. عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کئی ادبی نشستیں جو ہوتی ہیں تو اس میں خواتین کی حاضری کم ہوتی ہے یا پھر نہیں کے برابر ہوتی ہے. تو خواتین میں کی بھی ہمت افزائی کی جائے، اور جو لکھنے والے نئے قلمکار ہیں خاص طور پر ان میں لڑکیوں کا بھی شمار ہے، ان کی ہمت افزائی کی جائے تو یہ بھی بہت آگے جا سکتی ہے. جیسے کہ ابھی احمد اقبال صاحب نے کہا کہ اورنگ آباد میں نئی خاتون شعراء ابھر کر آئیں گی، اور اس میں ہمارے پاس جو خواتین ہیں تو وہ افسانہ نگار بھی ہے اور بہت بہترین افسانے لکھتی ہیں. اور آج تو موضوعاتی شاعری یہاں پیش کی گئی. عام طور پہ خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی ہمت افزائی ہو تو یہ صنف اہم ثابت ہو سکتا ہے. ویمنز آئی ٹی آئی کالج میں زیر تعلیم طالبات کے ہاتھوں تیار کردہ مشینز اور دیگر اشیاء کی نمائش رکھی گئی، جس کا افتتاح ڈاکٹر دیولانکر کے ہاتھوں کیا گیا. ناظرین، ویمنز آئی ٹی آئی کالج انتظامیہ نے دیگر کالجز اور اسکولز میں زیر تعلیم طالبات میں آئی ٹی آئی سے دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے اپنے کالج میں زیر تعلیم طالبات کے ہاتھوں تیار کردہ مشینز اور دیگر ماڈلز کی نمائش کالج بلڈنگ میں منعقد کی. یہ نمائش 2 دنوں تک جاری رہے گی، جس کا افتتاح آج منو الیکٹریکلز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ونائک دیولانکر کے ہاتھوں عمل میں آیا، جبکہ گورنمنٹ انجینئرنگ کالج کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ڈاکٹر انیرودھ نکالجے، ڈسٹرکٹ ووکیشنل ٹریننگ آفیسر دندے جی بی، گورنمنٹ آئی ٹی آئی کالج کی پرنسپل شریمتی ایم وی پوار مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں. اس نمائش میں ڈریس میکنگ، الیکٹرانکس میکینک، ڈرافٹس مین میکینک، آئی سی ٹی ایس ایم آرکیٹیکچر ڈرافٹ مین، فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز پروسیسنگ جیسے کاروبار کے لیے تیار کردہ ماڈلز رکھے گئے تھے. اس ایگزیبیشن کے لیے اسکول اور کالج کے طلباء کو مدعو کیا گیا تھا، جس کے مطابق ماڈل ہائی اسکول، وجے انٹرنیشنل اسکول، بال نیان مندر، ٹیکنیکل ہائی اسکول اورنگ آباد کے طالبات نے اس نمائش کو وزٹ دی. اس نمائش کو کامیاب بنانے میں شبانہ سید، صادق پٹھان، شریمتی چوتھمل، رینوکا کماوت، آچاریہ ڈباڑے، آشیش ڈھنگارے اور دیگر نے اہم رول ادا کیا. بی جے پی متحدہ محاذ حکومت سے کہیں زیادہ ترقیاتی فنڈ مہا وکاس آگھاڑی سرکار نے عثمان آباد بلدیہ کو دیا ہے. یہ بیان صدر بلدیہ مکرند راجے نمبالکر نے دیا ہے. عثمان آباد بلدیہ کی میعاد مکمل ہو جانے کے بعد یہاں کی باڈی تحلیل کر دی گئی اور صدر بلدیہ کے عہدے پر ایڈمنسٹریٹر کی نامزدگی عمل میں آئی ہے. لہٰذا صدر بلدیہ مکرند راجے نمبالکر نے آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے پہلے ایک پریس کانفرنس طلب کی اور صحافیوں کو بتایا کہ ان کے 5 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے مہاراشٹرا پر بی جے پی متحدہ محاذ کی بھی حکومت دیکھی ہے اور مہا وکاس آگھاڑی سرکار کا بھی کاروبار دیکھا ہے، مگر بی جے پی متحدہ محاذ نے جان بوجھ کر عثمان آباد بلدیہ کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ فراہم نہیں کروائے، جبکہ مہا وکاس آگھاڑی سرکار نے گزشتہ 2 سالوں میں عثمان آباد بلدیہ کی بھرپور مالی امداد کی، جس کی وجہ سے یہاں کئی ترقیاتی کام شروع کروائے جا سکے ہیں. شاہنور واڑی شمبھو نگر علاقے سے گزر رہے نالے کی زمین پر کیا گیا ناجائز قبضہ آج میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے ہٹا دیا اور وہاں
तामीर की गई इमारत भी मुनहदिम कर दी। म्यूनसिपल ज़राए का कहना है कि सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के अलावा गैर कानूनी मकानात तामीर करने वालों से मुताल्लिक़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और मुतल्लिक़ा अफसरान को इस तरह की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दे रखी है, जिसके तहत एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निगम की रहनुमाई में आज शाहनूर वाड़ी शंभू नगर इलाके से गुजर रहे नाले की जमीन पर किया गया नाजायज कब्जा हटा दिया गया। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक किसी ने गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते को इत्तला दी कि शाहनूर वाड़ी शंभू नगर इलाके से गुजर रहे नाले पर कुछ अफराद गासिबाना कब्जा करके वहां बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं, जिस पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने, RS राचतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गौली, RS सुरासे, सागर श्रेष्ठ, सैयद अफजल और दीगर अमला वहां पहुंचा और नाले की ज़मीन पर कब्जा करके वहां तामीर की जा रही इमारत का काम रुकवा दिया और किया गया काम भी मुनहदिम कर दिया। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से अपील की है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते ज़ोर को देखते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन और दीगर एम्प्लॉइज़ की बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के जरिए ली जाने वाली हाजिरी फौरी बंद की जाए। आम्ही आज आयुक्त साहेबांना, प्रशासक साहेबांना भेटून या वाढत्या कोविड-19 कोरोनामुळे ओमिक्रॉन आजारामुळे वाढत्या प्रादुर्भावामुळे संसर्ग वाढण्याचा धोका आहे, त्यामुळे जे बायोमेट्रिक हजेरी आपली थंब लावल्याचं हे थंब लावण्याचं आपण जे आयुक्त साहेबांना केलेलं आहे, आम्ही त्यांना भेटून अशी मागणी केलेली आहे की त्यांनी बायोमेट्रिक थंब हे काही काळापुरतं स्थगित करावं, सध्या जोपर्यंत हे होत नाही त्यामुळे थंबवर हजेरी न घेता हजेरी आपलं रजिस्टर हजेरीवर घ्यावे, हे आम्ही त्यांना भेटून विनंती केलेली आहे। माझं नाव कैलास जाधव, सचिव बहुजन कामगार शक्ति महासंघ, मनप्पा, औरंगाबाद। आसेगांव गट नंबर 65 से रेत चुराने वाले 3 अफराद को दौलताबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से JCB और हाइवा ट्रक समेत 45 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद पुलिस को एक मुखबिर ने इत्तला दी थी कि कुछ लोग आसेगांव इलाके के गट नंबर 65 से रेत चुरा रहे हैं, जिस पर इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने अपने अमले के साथ आसेगांव तालुका गंगापुर के उस मकाम पर जाल फैलाया जिसकी निशानदेही मुखबिर ने की थी और वहां छापा मारा तो देखा कि JCB की मदद से एक हाइवा ट्रक में रेत लोड की जा रही है, जिस पर पुलिस ने आसेगांव के साकिनान काका साहब काशीनाथ पल्लाड़, गणेश विश्वनाथ पल्लाड़ और पिंपरी तालुका पाथरी जिला परभनी के साकिन दीपक कारोबारी रुमाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक हाइवा ट्रक, JCB, 6 ब्रास मसरूखा रेत और मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल हैंडसेट समेत 45,53,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस इंस्पेक्टर राजश्री आड़े की शिकायत पर दिफा 379-34 के तहत दौलताबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात हेड कांस्टेबल पठान कर रहे हैं। पोलीस स्टेशन दौलताबाद येथे काल रात्री आम्ही विभागीय गस्त करत असताना आम्हाला अशी माहिती मिळाली की आसेगाव आणि त्याच्या पुढे एका ठिकाणी अवैधरित्या वाळूचं उत्खनन होत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून आम्ही तात्काळ स्टाफसह तेथे पोहोचलो। सदर ठिकाणी पोहोचल्यावर आम्हाला एक JCB आणि एक हायवा पूर्णपणे वाळूने भरलेली आणि एक JCB त्या रस्त्याच्या कडेला उतरत असलेली गट नंबर 65 मध्ये आढळून आली। त्यांना आम्ही त्यांच्या उत्खननाबाबत किंवा वाळू परवान्याबाबत काही परवानगी आहे किंवा कसे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी कुठलीही उत्तरे दिली नाहीत। याचा अर्थ त्यांनी ती वाळू चोरून नेत होते अशी आमची खात्री झाल्याने तिथे असलेले 3 आरोपी, एक JCB, हायवा यांना आम्ही तात्काळ ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला आलो आणि त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल केलेली आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहरियान को नए साल का तोहफा देते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली में शहरियान की जानिब से मिल रहे ताउन पर भी अदा किया शुक्रिया।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद को नाकारा इलेक्ट्रिक वायरिंग से जल्द मिलेगी निजात। डीपीडीसी की मीटिंग में 3 करोड़ रुपयों के फंड को मिल सकती है मंजूरी। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जताई उम्मीद। तारीखी शहर का अदबी जमूद हो गया खत्म। अंजुमन अहले कलम और दीगर तंजीमों की काविशों से अच्छी गज़लें, नज़में और अफसाने लिखने वाली ख़वातीन की टीम हो गई तैयार। कौमी सतह पर शहर का नाम रोशन होने का इम्कान। नौखंडा कॉलेज में मुनक़दा अदबी प्रोग्राम से दानिश्वरों का खिताब। और रेत का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर दौलताबाद पुलिस ने कसा शिकंजा। आसे गांव से रेत चुराने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। जेसीबी और हाईवा ट्रक समेत 45 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।